ਇਹ ਲੜਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਇਹਦਾ। ਇਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਨੇ लड़के ने इन्हू सुंघा के इहदा किडनैप कर लेता। पापा की जानकारी में तो पापा की गाड़ी चलाता था, वो आता था, बस नॉर्मली वैसी बात हुई। उसके झांसे में आकर उसने मेरे को अपने झांसे में लेकर मुझे किडनैप किया। उत्थे जाके इन्होंने एक आइसोलेटेड जगह घर है जिथे ये चीका भी मारदी तां भी किसी ने आवाज़ नहीं सुननी सी। उत्थे लड़की दे नाल उन्हें सख्त बेहोशी की हालत में। तो ये लोग मुझे मारते पीटते, मेरे साथ गलत करते, ज़बरदस्ती करते। हुसैन ने वीडियो बनाई, बिलाल ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਉਹੀ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਆਪ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਧਰਮ परिवर्तन करता। मैंने उसने अपने आप धर्म परिवर्तन अपने आप किया है, वो कागज भी मेरे पास है। ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਧਰਮ परिवर्तन ਕੀਤਾ। ਧਰਮ परिवर्तन ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੈ। कि 2-3 दफा मेरे पास आई थी बेटा, मैंने उनको उसके घर भी छोड़ा था, उसके फादर के पास। ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਮਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ अपील करती भी लड़की बालग है, सानू सिक्योरिटी देती जाए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि लड़की नाबालग थी, उसको कोई जादू किया, उसके ऊपर ऐसे ऐसे किया, भी उसको अपने वश में कर लिया। गलत था, और लड़की ने ना अपने मायके में रह करके ही आधार कार्ड चेंज करवा लिया था। ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਔਰ ਭੈਣ ਇਹਨੂੰ ਰੇਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧੰਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। कि बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि वो जो इनकी मज़ार है पीर की, वहाँ पे लड़कियों के धक्के से धर्म परिवर्तन करते हैं, और जो लड़की उनके वश में हो जाती है उनको देह व्यापार के लिए छोड़ देते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं किसी को धमकी देने को, ना हमने कभी किया है और ना हम देना चाहते हैं, ना हमने आज तक किसी बच्चे के ऊपर हाथ उठाया है। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, 376 ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਲ नहीं ਹੁੰਦੀ। इसके पापा को भी इतना पता था कि वो लड़की अगर भाग के और उसकी माँ पकड़ पर लाती थी तो वो मेरी लड़की डेरा बस्ती में ही गई होगी। पापा को तो पता था ना इस चीज का, तो पापा आकर उसके ले जा सकते थे। पंजाबी लोग चैनल के नाल तुसीं जुड़े हो, मैं तुहाडे नाल जगसीर सिंह। एक तस्वीर अजिही सामने आई है कि धर्म परिवर्तन एक कुड़ी का किया गया, तो धक्के दे नाल जिहड़ा मुसलमान भाईचारे दे विच विआह कर दिता गया। इस दे उत्ते अगर जे गल कीती जावे, SSP चंडीगढ़ नूं एक लिखती दे विच पत्र दिता गया, मंग कीती गई है कि सख्त कार्रवाई की जाए। पर असल दे विच ये वजह की है, की कारण है, असीं समझण दी कोशिश करांगे। साडे नाल विजय जी ने गलबात करांगे। सर, तुसीं खास तौर ते इत्थे SSP नूं पहुंचे मंग पत्र देण लई, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਵਾ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫਸਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਗੈਂਗ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਈ ਘਟਨਾ ਘਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਕਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ। ਇਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਨੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਘਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਕਾਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਜਾਹਿਦਾ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੁਸੈਨ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਉਹਦਾ ਜੀਜਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਟੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ
ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਉਹੀ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਆਪ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਮਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਬਾਲਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦ ਬੁਲਾਇਆ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਓਰੀਜਨਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਏ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਉਹ ਦਿਖਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਨਿਆਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਔਰ ਭੈਣ ਇਹਨੂੰ ਰੇਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧੰਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਡਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਲ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, 21 ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦਾ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੱਤਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 43 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, 376 ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? सर दोस्ती क्या, पापा की जानकार में तो पापा की गाड़ी चलाता था, वो आता था, बस नॉर्मली वैसी बात हुई। उसके झांसे में आकर उसने मेरे को अपने झांसे में लेकर मुझे किडनैप किया धोखे से। किडनैप करने के बाद वो अपने मज़ार पे ले गया जहाँ उसके पापा तांत्रिक हैं और टोटका टोना जो भी है अपना वो करते हैं। वहाँ पे लेकर गए तो वहाँ पे मेरे को मतलब एक तो बेहोशी हालत में थी। जब मुझे होश आया तो वहाँ पे मतलब देखा कि इसकी पूरी फैमिली थी, इसके मम्मी पापा भाई बहन जीजा सारे वहाँ पे थे। फिर वहाँ से मेरे को ये लोग, जब मैं बोलने लगी चिल्लाने लगी कि मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो, कि मुझे तो घर जाना है, कि घर क्यों, तो ये लोग मुझे कहने लगे कि हाँ अभी हम तुम्हारे घर छोड़ देंगे तुमको, कि तुम रुक जाओ अभी। जब मैं चिल्लाने लगी इसके पापा ने और इसकी मम्मी ने कुछ खाने पीने को दिया, कुछ झाड़ फूक सा किया जिससे कि मैं फिर से बेहोश हो गई जो इन्होंने खाने पीने को दिया। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? 2018 में हुई थी ये। और
ये लोग मुझे मट्टाली लेकर चले गए, जो रामगढ़ के पास में एक गांव है, वहाँ पे लेकर गए। एक कमरे में इन्होंने मुझे बंद करके रखा। जब मुझे होश आया, मैंने पूछा कि मुझे यहाँ पे क्यों रखा गया, क्यों लेकर आए हो, कि मुझे मेरे घर जाने। जब मैं चीखती चिल्लाती तो ये लोग मुझे मारते पीटते, मेरे साथ गलत करते, ज़बरदस्ती करते। जब मैं चीखती चिल्लाती तो बोलते चिल्लाना नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये सब बोलते रहते, धमकियाँ देते रहते। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਕੋ ਕੇ? इस तरह मुझे जब तक मेरी गवाही नहीं हुई तब तक उन्होंने अपने उसमें रखा मुझे। मतलब कभी लखनऊ, कभी नैनीताल, कभी कहीं लेकर जाते रहे। जाने के बाद जब मेरी गवाही थी, उस दिन लेकर आए तो ये लोग मुझे मेरे भाई के पास लेकर चले गए किडनैप करने के लिए। पहले धमकी देने लगे कि अगर तूने मेरे खिलाफ़ या मेरे घर वालों के खिलाफ़ धमकी दी तो तब मैं ऐसा कर दूंगा, ये देख तेरा भाई है, यहाँ से उठा लूँगा, तेरे भाई से मिलवा देता हूँ एक बारी, कि देख ले कि क्या इल्ज़ाम होगा। मेरा सबसे छोटा भाई था, 43 में पढ़ता था। अभी मांग क्या करते हो अभी प्रशासन से? और अभी मैं ये मांग करती हूँ कि मेरे को उससे मतलब उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसकी फैमिली के ऊपर और उसके ऊपर। ਵਿਜੇ ਜੀ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। हेलो, सत श्रीकाल आंटी जी। मैंने आपसे बात करनी है, मैंने आपसे पूछना है जो सब, मैंने रिकॉर्ड भी करना है वो। आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर एक केस चल रहा है जो चंडीगढ़ पुलिस के पास सुबह गए थे। उसके फादर एक और थे विजय जी कि आपने एक लड़की धर्म परिवर्तन करवाया और धक्के से शादी करवाई है। देखो बेटा, मैंने उसने अपने आप धर्म परिवर्तन अपने आप किया है। वो कागज भी मेरे पास है। अपनी मर्जी से वो मेरे पास आई भी थी, 2-3 दफा मेरे पास आई थी बेटा। मैंने उनको उसके घर भी छोड़ा था, उसके फादर के पास। वो भी कागज उन्होंने लिखित मेरे को दे रखा था। फिर मैंने यहाँ पे जब मैंने अपने लड़के को इस वजह से मैंने बेदखल कर दिया था तो वो डेराबस्सी में आके रहने लग गया था। ओके। तो वो लड़की फिर भी नहीं मानी, वो अपने पापा के साथ घर भी गई। उसके बाद वापस आने के बाद अपने पापा को छोड़ के 25 के वहाँ से ये तुरंत मेरे पास आ गई डेराबस्सी में, लड़के के पास। 3-4 दिन लड़के के पास अलग कमरे में कहीं रहती थी। अच्छा जी। मैंने उस लड़की को कहा 3-4 दिन के बाद कि तू अब घर चले जा, बोल देना रिश्तेदारी में मैं गई हूँ। तो लड़की ने बोला कि मैं जहर खा के मर जाती हूँ और आपके लड़का भी मर जाता है, आपको अपना लड़का चाहिए और मेरे बाप को लड़की चाहिए। ठीक है, मैंने 3-4 दिन के बाद उसको देखा। उसके बावजूद फिर मैंने अपने घर वाले को प्रेशर डाला कि लड़की मान नहीं रही है, ऐसे ऐसे बोल रही है, उसकी शादी निकाह करा दो। और मैंने इसके पापा का भी इंतजार किया कि इसके पापा यहाँ पर आ जाएंगे तो मैं उस लड़की को पकड़वा दूंगी जी। इसके पापा को भी इतना पता था कि वो लड़की अगर भाग भाग के आती थी और उसकी माँ पकड़ पर लाती थी तो वो मेरी लड़की डेराबस्सी में नहीं गई होगी। पापा को तो पता था ना इस चीज का। तो पापा आकर उसके ले जा सकते थे, जो कार्रवाई बनती थी वो मेरे लड़के पे कर देते उस टाइम पे। अच्छा आंटी जी, इसके पापा
जी, ये बेदखल आपने कब किया था? कोई अखबार में भी निकाला था? क्योंकि अखबार में निकलवाना पड़ता है। हाँ जी, मैंने अखबार में वो निकलवा दिया था। कितने समय लड़के का कितना बेदखल। समय हो गया ये निकालने को? ये तो बेटा मेरे को देखना पड़ेगा उस कागज को, शादी की पहले की बात है ये। मतलब 2018-19 में आपने बेदखल कर दिया था? हाँ हाँ, बेदखल मैंने कर दिया था। उसके 3 या 4 महीने के बाद उस लड़की से शादी हुई है। ओके। हाँ। वो तो बोल रहे हैं कि हमने पहले ही पुलिस को कंप्लेंट कर दी थी कि जब इन्होंने शादी की है, शादी से पहले ही कंप्लेंट कर दी थी। नहीं नहीं, वो तो आपको डेरा बस्सी में यहाँ शादी का जो हाई कोर्ट से जो शादी का जो वो होएगा ना कागज, उससे आपको तारीख से पता लग जाएगा फिर। वो तो ये भी कह रहे हैं कि लड़की नाबालिग थी, उसको कोई जादू किया उसके ऊपर, ऐसे ऐसे किया, भी उसको अपने वश में कर लिया। गलत है। नहीं बेटा, ये सब गलत है, क्योंकि मैंने लड़की को ना इस चीज का मैंने खुद बोला था, और लड़की ने ना अपने मायके में रह करके ही आधार कार्ड चेंज करवा लिया था। जब मैं पकड़ लेके जाती थी ना, लड़की को पता था कि ये कबूल नहीं करेंगे छोटी उम्र में, तो इसलिए कितनी आधार कार्ड अपने आप बदलवा लिया था। मुन की उम्र कितनी थी उस टाइम? उस टाइम 17 साल की शायद उम्र थी। ओके, नाबालिग थे वो उस टाइम। हाँ, 17 साल की उम्र थी। उसने आधार कार्ड चेंज करवा दिया, 18 साल करवा लिया था। जिस टाइम ये भाग के मेरे पास आई थी। अच्छा। वही, हाँ वही 18 साल का जो कार्ड इसने उसमें हाई कोर्ट में दिखा के इसने शादी कर ली थी। तो आपको कोर्ट ने क्या बोला फिर? आपने जब बुलाया भी था कोर्ट में? भाई मेरे पास जो कागज थे बेटा, मैंने वही कागज इसको दिखा दिए। उसके पापा के जो मेरे पास लिखित कागज थे वो दिखा दिए, शादी का जो था वो दिखा दिया। मेरे लड़के के ऊपर प्रेशर पड़ा था, जो लाल ये खून इसने काट के लड़की ने ना अपने हाथ लाल खून से लिखे हुए जो कागज थे वो भी मैंने कोर्ट में दे दिया। ओके। मतलब क्या कहते थे कि मतलब आप कह रहे हो कि क्या कहती थी कि मैं बिलाल के घर ही जाऊंगी। हाँ, बिलाल के बिना नहीं रहूंगी। हाँ हाँ। तो अब ये मेरे पास जब शादी हो गई तो मैंने यहाँ 5 साल उस लड़की को रखा भी मेरे साथ। 5 साल डेरा बस्सी में रखा आपने? डेरा बस्सी में कमरे पे, डेरा जगाधरी में कमरा है वहाँ पे रखा। अच्छा। और यहाँ डेरे पर भी आती थी, अपने टाइम निकाल के डेरे पर से फिर घर चले जाती थी। जब लड़का शाम को आता था तो लेके चला जाता था घर पे। आपने कभी कंप्लेंट नहीं की कि इस तरीके से? आपके तो बिल्कुल पुलिस स्टेशन नज़दीक है, आपने कभी कोई कंप्लेंट की हो? नहीं बेटा, देखो 2 साल मैंने कभी कंप्लेंट ऐसी की नहीं करी थी, क्योंकि 2 साल मेरे साथ बहुत प्यार से जिस तरह बहू रहती उस तरह थी ये। उसके बाद से जब इसने अपने घर पे माँ बाप के पास, मौसी के पास, भाभी के पास जैसे आना जाना इसने शुरू किया, तो मैंने इसको मना भी नहीं किया, क्योंकि फर्ज इस लड़की का बनता। जब अपने प्यार से अपने आप ही आई थी तो घर बसाना इसकी मर्जी का था। तो तब से इसने इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव पैदा होने लगा। तो मैं लड़के से भी बोली कि बेटा देखो ये बार बार वहाँ जाती आती है, तो इस करके थोड़ा बदलाव इसका हो रहा है, तो इस चीज को तुम देखो, उसने रहना है ये नहीं रहना, घर बसाना नहीं बसाना है। तो वो कहती थी, लड़की खुद कहती थी मेरे से कि मम्मी जब मैं यहाँ पे इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई हूँ तो मैं खुद यहाँ पे अपने आप क्यों नहीं रहूंगी, मैं रहूंगी। तो मैं अपने आप विश्वास, मेरे घर वाले भी और हम सब ना विश्वास बैठा के उसका, मेरा लड़का भी विश्वास बैठा के उसको रखने लगा। यहाँ पे रहते थे, जो कहती थी वो कपड़े लगते हैं, खाना पीना है, सामान चीजें जितना भी हो, लड़का भी कमा के लाके बना के देता था, हम भी देते थे। और वो तो अचानक से ही बेटा बिल्कुल ही जैसे कि मेरे से भी बातचीत नहीं करती थी। 3 महीने ना एकदम रहने लग गई थी वहाँ डेराबस्सी में। तो हम सोचने लगे कि चलो दोनों अपना कमाएं खाएंगे, अपना खुशी से रहेंगे। 5 साल हो गए थे, जब 6ठा साल इसका लगा तो 18 दिसंबर को ये लड़की यहाँ से सामान जो छोटा हाथी बुलाई है, और वहाँ घर पे डेरा जगाधरी में सामान सारा लोडिंग उसके ऊपर जो मेरा रखा हुआ था वो भी, जो यहाँ डेरे पर का भी जो सामान हमने बर्तन वर्तन वहाँ रखे हुए थे वो भी सारा चक्के, वॉशिंग मशीन, कपड़े लत्ते, डिनर सेट, जो कुछ भी था सारा उठा कर लेकर के चले गए। ये फिर इस तरीके नाल क्यों हुआ? क्योंकि अपने आपके साथ रह रहे थे, आपके साथ अच्छा व्यवहार था, फिर अभी क्यों ऐसा हुआ? उसने ऐसे किया? कोई मांग कर रहे हैं आपसे? क्या चीज़ है? कुछ मांग रहे हैं आपसे? तो ना तो आज तक हाथापाई हुई ना बेटा, ना तो कभी मेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह बुरी तरह हुआ। बस एक मोबाइल के पीछे हुआ था कि दोनों मियां बीवी में एक दिन झगड़ा हो रहा था,
तो हम दोनों जाना पहुंच गए। तो मोबाइल हमारे घर वाले ने, बाबा जी ने छीन लिया हाथ से, कहा करके ये मोबाइल से ही तो तुम लोग का कलेश हो रहा है कि तू बार बार इधर उधर फोन करती है, तो इस करके कलेश हो रहा, तो इसलिए इधर मोबाइल मेरे को दे दे। तो इसके पापा का उससे कनेक्शन चल रहा था, इसके पापा उससे उस मोबाइल से बातचीत कर रहे इनकी थे। शादी कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे निकाह किया गया था? मजार में किया था या फिर कोर्ट का कोई मैरिज कोर्ट की थी? नहीं, कोर्ट में नहीं किया था, ये कहीं कहीं और जगह करा था। ये कहाँ पे किया था? निकाह इनका ये मेरे को नहीं पता, ये तो उसको को पता होगा। आप लोग गए थे आपको पता इनकी होगा। शादी में? मैं तो थी नहीं बेटा, उस टाइम निकाह के टाइम पे मैं नहीं थी। आपके मतलब फैमिली मेंबर कोई नहीं था, वो अकेले ही थे? हाँ। ओके, आपके जो पति हैं वो भी नहीं थे? नहीं, मेरे पति भी नहीं थे। ओके। जो उन्होंने किया था। ये अभी एसएसपी के पास मिल के आए हैं, उन्होंने बहुत इल्ज़ाम लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें धमकी भी दी जा रही हैं कि मार देंगे, तुम्हारे भाई को मार देंगे। ऐसी धमकियां दे रहे हैं बिलाल और उनके फादर मोहम्मद। क्या इसको देखते हो आप? आपने क्यों नहीं पुलिस के? ये सब गलत, सुनो बेटा, ये सारा गलत चीज है। हम उन चीज में कुछ नहीं लेते हैं, वो तो रब की देन है। देखो, जिंदगी का, मेरी जिंदगी का या उनकी जिंदगी का, हम क्यों किसी को मारे हैं? हमें क्या जरूरत पड़ी है? हाँ, जो गलती कर रहा है उसको सजा, कानूनी तौर से उसको सजा दो। मतलब आप चाहते हो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसका जो असल सच है वो सामने आना चाहिए? हाँ, लड़ाई झगड़ा किसी से कुछ ना हो, हमें कोई जरूरत नहीं किसी को धमकी देने को, ना हमने कभी दिया है और ना हम देना चाहते हैं, ना हमने आज तक किसी बच्चे के ऊपर हाथ उठाया है। जब समझाने से समझ जाएंगे बच्चे, तो हमें जरूरत क्यों है किसी तो के पुलिस ऊपर अभी हाथ पुलिस कार्रवाई करेगी क्योंकि वो एसएसपी के पास गए थे, तो आप उससे संतुष्ट होगे? आप साथ दोगे पुलिस का कि कार्रवाई होनी चाहिए? बाबू देखो, यहाँ डेरा बस्ती में सारी चीज अच्छी तरह से छानबीन कर लो। हाँ, अच्छी तरह छानबीन, पुलिस छानबीन कर ले कि गलती क्या है क्या नहीं है। मेरे से तो कोई गलती हुई नहीं है, ना मेरे बच्चों से। ये मेरे बच्चों के साथ में देखो, वो सब रहते नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों खुद ही रहते थे। आपके साथ कितना टाइम रहे वो शादी से पहले? मेरे साथ शादी से मेरे साथ तो रहे, दो साल तक का सही रहे इस हिसाब से। ओके, मतलब 2020 तक सही रहे, 2018 में शादी हुई? हाँ, उसके बाद से तो ये अपने आप ही अपनी मर्जी से ही चलने लग गए थे, फिर हमने इनका साथ छोड़ दिया था। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलो ठीक है, अपनी मर्जी से चलने लग गए। हाँ। ठीक है, ठीक है। आपका नाम क्या है? इसका नाम जैनब निशा। हाँ जी, जैनब निशा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। जैनब निशा। और मैंने कई दफा ना बेटा, हाँ जी, पुलिस की भी मदद मांगी, मेरे को कहीं पुलिस से भी मदद नहीं मिली थी। ओके। कंप्लेंट चाहती थी मैं देने के लिए, मगर कोई मदद नहीं मिली किसी के पास भी, जैसे कि मेरी सुनाई हो, या मैंने यहाँ चौकी में भी मैं 2 दफा गई कि मैं कंप्लेंट लिख दूं, जैसे बच्चों के बारे में कि इनका थोड़ा सा जाओ बुझाओ या किसी तरह रखो इनको, मगर कहीं कोई कंप्लेंट। यही बात तो के फादर कह रहे हैं कि मैंने भी कई बार पुलिस को कहा कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। आप भी कह रहे हो कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, फिर किसकी बात सुनी है पुलिस ने? आप दोनों की तरह? नहीं बेटा, उनकी तो पुलिस मानती है, मैं तो नहीं मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जो मोबाइल जो हमने छीन रखा था, देखो मैं आपको बताती हूँ, बाबा जी ने जो मोबाइल हमने, क्योंकि मेरे बेटे की कमाई थी या मेरे पति की कमाई, वो तो मेरा हक बनता है ना उससे। अगर वो बहू चला रही है और अपने माँ बाप से उसमें फोन कर रही है और गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, तो मैंने उसको फोन को, मेरे बाबा जी ने छीन लिया था। उस टाइम इसके पापा कंडक्टर में थे, तो फोन मेरे पास था, तो फोन चल रहा था उस टाइम, और मैं घर पे थी, तो उस टाइम फोन छोड़ के यहाँ से भाग गई। उसको पता था कि मम्मी जाएगी तो अपने बच्चों में, परिवार में बताएगी, तो परिवार के लोग मेरे ऊपर हावी होंगे या मेरे पे हाथापाई करेंगे। तो मेरे बच्चे कभी देखो किसी के ऊपर हाथापाई और परिवार की तरफ आज तक करा नहीं है बेटा। मैंने 7 बच्चे पाले, मैंने आज तक का मेरे बच्चों ने एक दूसरे भाई बहनों को लड़ाई नहीं करी आज तक, ना गाली गलौजा कर रखी है ठीक है। आज तक, ना इन चीजों में आज तक कोई कंप्लेन हुआ है। जब मेरी डांट से उनको समझ मिल जाती है और मेरे आग दिखाने से वो डर जाते हैं, तो मुझे जरूरत है क्या हाथ पैर चलाने की। आंटी, मैं लास्ट सवाल करना चाहूँगा। उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि वो जो उन्होंने की मज़ार है पीर की,
वहाँ पे लड़कियों के धक्के से धर्म परिवर्तन करते हैं और जो लड़की उनके वश में हो जाती है उनको देह व्यापार के लिए छोड़ देते हैं। ये तो सरासर बेटा गलत है। जो पीर की दरगाह है, अगर हम परिवारदार हैं, अगर हम दूसरे का घर बर्बाद करेंगे तो हमारा घर नहीं बर्बाद होगा जी। हमारे भी, मेरे पास बच्चे बेटा ना, बच्चे अगर बच्चे मेरे पास नहीं होते, बाबा जी परिवार वाले नहीं होते तो मैं मान सकती थी कि मैंने ये उल्टा काम करते हैं। जब मैं इस जगह खुद दरगाह के पास में, पीर की दरगाह पे मैं खुद बैठी हूँ, खुद इस चीज को देख रही हूँ, कर रही हूँ, तो ये सारा सर गलत है। ठीक है, बिल्कुल इतना, हाँ ये बहुत गंदा काम, ये बहुत गलत इल्जाम उसने लगा रखा है। ठीक है आंटी, धन्यवाद। हाँ जी। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਿਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1213 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜੈਨਬ ਨਿਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ करे। पुलिस कार्रवाई कर रही है, किस तरह का मैटर था ये? हमारे पास एक लड़की और उसके फादर अपीयर हुए थे। वो हमें बता रहे थे कि एक लड़का जिसके खिलाफ पुरानी 2018 में एफआईआर हुई है, उसके बिहेस्ट पे इनको हरासमेंट हो रही है और बार बार थ्रेटन कर रहे हैं। तो इनसे कंप्लेंट लेके हमने एसएचओ के पास भेज दी है और जो भी इंक्वायरी करके जो भी लॉफुल एक्शन बनेगा हम करेंगे। ये कोई धर्म परिवर्तन की बात आ रही है सामने, उसको लेकर भी पुलिस कोई वेरीफाई कर रही है? तो ये जो एफआईआर है जी 2018 में हुई थी, जिसमें 363 की एलिगेशंस लगी थी, उसमें ऑलरेडी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके चालान पेश कर दिया है कोर्ट में। उसके बाद लड़की की प्रॉपर स्टेटमेंट हुई है, लॉफुली जो कार्रवाई बनती है हुई है। जो नई एप्लीकेशन आई है उसमें हम अभी इंक्वायरी कर रहे हैं और जो भी डिटेल सामने आएंगी हम उस पर एक्शन लेंगे। तो लव जहाद वाला कुछ ऐसा मैटर तो नहीं, अभी ऐसे टर्म करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास आज ही कंप्लेंट आई है आपके आने से पहले, और जो भी इंक्वायरी करके जो भी सामने आएगा हम करेंगे। Are we going to take any action against the threatening allegations? क्योंकि वो कह रहे हैं हमें threaten भी कर रहे हैं। Yes, whatever lawful is made against the accused, we will take necessary action. ठीक।